Hello students, welcome back in my YouTube channel. Today we will discuss question answer of Monkey Trouble, the chapter of a class 7. It is written by Ruskin Bond, and here is the full explanation of a question answers, Hart's value-based life skills and writing skill. So let us start with the about the author. Ruskin Bond is one of the famous writer among children. He was born in Kasauli, Himachal Pradesh in 1934, and he was brought up in a different place like the Jamnagar, Dehradun and Simla. He wrote his first novel, Room on the Roof, when he was only 17 years old, for which he received John Llewellyn Rhine Memorial Prize in 1957. Ruskin Bond has now been writing for more than 6 decades. His collection of short stories, The Night Rain at Deoli, Time Stops at Shamli, Our Trees Still Grow in Dehra, are worth reading. You can also search on Google and you can read this story. Repelled the unassuming humor, quiet wisdom, his stories manifest a deep love for nature and the people. He was in love with the nature, so he has described about nature in his stories. So that here is we have the story of Monkey Trouble, and at first understanding the story. Some statements based on the story are given below. Trick T for true and an F for false statement. Rewrite false statement after making correction. So that in the first one is the street entertainer who sold Tutu had 3 other monkeys. This is the false. Rocky often gave chocolates and walnut to the narrator. This is also a false, two true statement. And Rocky took Aunt Ruby to a jeweler's shop for buying an engagement ring. This is also a true statement. Fourth one is Tutu followed the narrator to a jewelry shop without being noticed. This is also a true statement. And the last one is Tutu put some herbs and spices in the wedding cake. This is also a true statement. So here is only one statement is a false. Last one is also a true statement. Now come to the next question. Answer the following question in not more than 30 words each. How was grandmother convinced to keep Tutu as a pet? ग्रैंडमदर कैसे कन्विंस हो गई कि टूटू को अपने घर में पालतू बना के रखना है? Grandmother was convinced to keep Tutu as a pet when grandfather told her that Tutu is a girl monkey. ग्रैंडमदर को बताया गया कि ये जो मंकी है टूटू वो मेल मंकी नहीं है, ये फीमेल मंकी और गर्ल मंकी है. Grandmother was always willing to have a little girl in the house, so she believed girls are less troublesome than the boys. ग्रैंडमदर ऐसा सोचती थी कि घर पे कोई ना कोई छोटी लड़कियां घर पर रहे, और वो ऐसा सोचती थी कि लड़कियां सब बहुत कम परेशान करती है.
बॉयज़ के मुकाबले. हियर इज ट्रबलसम मीन्स परेशान करना. Second question is, why did the narrator follow Aunt Ruby and Rocky secretly to the jeweler's shop? What reason did Tutu have for following them? नरेटर ने आंट रूबी और रॉकी को चुपके चुपके क्यों फॉलो किया टू द ज्वेलरी शॉप तक? What was the reason Tutu have also following them? और क्या रीज़न था, क्या कारण था जो कि टूटू भी नरेटर के पीछे पीछे चले गया? द आंसर इज द नरेटर फॉलोड आंट रूबी एंड रॉकी सेक्रेटली टू द ज्वेलरी शॉप बिकॉज ही वांटेड टू गो विद देम टू द मार्केट बट आंट रूबी रिफ्यूज टू अलाउ हिम टू ज्वाइन देम. नरेटर ने आंट रूबी और रॉकी को चुपके से फॉलो किया ज्वेलरी शॉप तक क्योंकि वह चाहता था कि वो भी मार्केट जाए एंड आंट रूबी नहीं चाहती थी कि नैरेटर भी उसको ज्वाइन करे. एंड टूटू थॉट अ मिशन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट वॉज अंडर वे सो ही डिसाइडेड टू फॉलो देम. और टूटू भी यह समझ गया था कि कोई ना कोई ऐसा मिशन है जो होने वाला है. अंडर वे मीन्स इट इज़ अबाउट टू हैपन. Underway means it is about to happen. That's why he decided to follow. About to happen. टूटो की भी ऐसा लगा था कि कोई न कोई ऐसा मिशन है जो कि होने वाला है, इसलिए वो भी उसको पीछा करना है, वो भी नरेटर का पीछा किया. थर्ड क्वेश्चन, वाई डिड द पीपल इन द बाजार चेज टूटू? चेज का मतलब होता है यहाँ पर फॉलो करना. टू फॉलो. तो वाई डिड द पीपल इन अ बाजार चेज टूटू? तो जो भी पीपल थे बाजार में उन सभी ने टूटू को क्यों पीछा किया? द पीपल इन द बाजार चेज टूटू बिकॉज दे सॉ दैट others were running behind the monkey without having any idea as to what is all about. सब जो भी पीपल ने देखा था वो सभी ने टूटू का पीछा किया, फॉलो किया, बिकॉज दे सॉ दैट अदर आर रनिंग बिहाइंड द मंकी. वो लोग सभी देख रहे थे कि एक मंकी के पीछे पीछे सभी दौड़ रहे हैं और बिना किसी आइडिया को जाने हुए it is all about and each and every people blindly follow Tutu and they are just blindly follow the monkey. वो लोग कुछ नहीं जानते थे बट वो लोग बस blindly follow कर रहे थे मंकी को. Fourth question, why did Tutu do with the necklace? How was it restored to the shopkeeper? टूटू ने नेकलेस के साथ क्या किया एंड ये नेकलेस शॉपकीपर तक रिस्टोर कैसे किया गया? टूटू डिसाइडेड टू गेट रिड herself of the necklace. She removed it from her neck and flung it into the small canal that ran down the road. टूटू ने रीड ऑफ, यहाँ पर हो जाएगा गेट रीड ऑफ. डिसाइडेड टू गेट रीड ऑफ हरसेल्फ फ्रॉम द नेकलेस. वो अपने आप को नेकलेस से छुटकारा चाह रहा था, इसीलिए वो रिमूव किया नेकलेस को, निकाला अपने गले से. रिमूव्ड मीन्स हटाना. हर नेक एंड फ्लंग. फ्लंग ये है वर्ब टू ऑफ अ फ्लाई, ठीक है. और उसने क्या किया? फ्लंग किया, उसको उछाल दिया नेकलेस को टू अ स्मॉल कैनल में. छोटा सा कैनल वहाँ था, उसमें उछाल के फेंक दिया. एंड रन डाउन द रोड. और वो क्या किए? और दौड़ करके रन डाउन द रोड, रोड की तरफ वो चले गया. द शॉपकीपर, रॉकी, नरेटर एंड सेवरल पीपल प्लंज into the canal to hunt the necklace. Plunge means jump करना.
लाइक द शॉपकीपर, रॉकी, नरेटर और बहुत से पीपल ने क्या किया, वो लोग भी प्लंज किए, जंप किए कैनल में, टू हंट मीन्स टू फाइंड द नेकलेस। हंट का मीन्स होता है फाइंड, खोजने के लिए, नेकलेस को खोजने के लिए सभी कूद गए किसमें, कैनल में। और फाइनली रॉकी को नेकलेस मिला एंड ही वॉज द पर्सन हु प्रेजेंटेड दिस नेकलेस टू शॉपकीपर। और उसने क्या किया, इस नेकलेस को रिस्टोर किया शॉपकीपर के पास। एंड इन दिस वे द नेकलेस वॉज रिस्टोर टू द शॉपकीपर। 6th question. This is the 5th question is completed. Now this is the 6 questions in which sentences are given below on the account of minions that Tutu created in the bazaar. But the sentences are jumbled. ये sentence कैसा है, jumbled है, mix किया हुआ है। आपको क्या करना है, rearrange them by writing appropriate serial number in the box provided against the statement. The opening statement is given. ओपनिंग स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, टूटू फॉलोड आंट रूबी एंड रॉकी सेक्रेटरी टू द ज्वेलरी शॉप। टूटू ने क्या किया, फॉलो किया आंट रूबी को एंड रॉकी को सेक्रेटरी टू द ज्वेलरी शॉप। सो नाउ वी हैव टू रीअरेंज इट लाइक दैट। द फर्स्ट वन इज देयर, द फर्स्ट वन इज सी स्लिप्ड इनटू द शॉप विदाउट बीइंग नोटिस। ये पहला है, दिस इज द फर्स्ट वन, सी फर्स्ट है, तो यहां पर भी आप फर्स्ट लिख सकते हो। सेकेंड, सी टुक अ पर्ल नेकलेस एंड पुट इट अराउंड द नेक। उसने क्या किया, उसने एक पर्ल नेकलेस लिया और अपने गले में पहन लिया। सेकेंड, जे इज अ सेकेंड। Third, Aunt Ruby and the jeweler saw her and tried to grab the necklace. ये H is the third one. Aunt Ruby and jeweler ने क्या देखा कि टूटू ने वो ज्वेलरी पहना है और he wanted to do something wrong with the necklace. That's why they wanted to grab the necklace. Fourth है टूटू रस्ट आउट इन द मार्केट। वो भाग गया मार्केट में। एंड फिफ्थ है रॉकी द ज्वेलर एंड द सेवरल पीपल इन द मार्केट फॉलोड हर। रॉकी, ज्वेलर और बहुत से पीपल ने उसको फॉलो किया। दिस इज द फिफ्थ वन। सिक्स्थ वन इज टूटू लिफ्ट ऑन द बैक ऑफ ए स्कूटरिस्ट। वो कूद करके स्कूटर पे बैठ गया। दिस इज द सिक्स्थ वन। सेवंथ वन, सी देन लैंडेड ऑन द डंकी एंड पैनिक्ड एंड रस्ट डाउन द रोड। वो डंकी पे बैठा और फिर डंकी उससे बहुत डर गया और फिर वो दूसरी रोड की तरफ भाग गया। एट्थ वन इज टूटू टुक द रोड लीडिंग टू द नरेटर हाउस। फिर वो क्या किया, एक रोड को देखा और वो नरेटर के घर की तरफ जा रहा था। दिस इज द एट्थ वन। ई इज द एट्थ वन। 9 है सी थ्रू द नेकलेस इनटू द कैनल। अब उसने क्या किया, नेकलेस को गले से निकाला और कैनल में फेंक दिया। और 10 है रॉकी डाइव्ड इनटू द कैनल, ट्रेस्ड द नेकलेस एंड रिटर्न इट टू द शॉपकीपर। वो कूदा, नेकलेस कैनल में कूदा और खोजा उस नेकलेस को और फिर रिटर्न किया शॉपकीपर को। This is all about rearrangement. You must write down and you have to write down these numbers in a boxes. This is the horse. Some animals have a sharp mind. They amaze us by their action. Do you think they are able to think in a right direction? Why and why not? हाँ, देर आर मैनी एनिमल्स विच हैव अ शार्प माइंड। ये सही है कि बहुत से एनिमल्स हैं
जिसको बहुत तेज दिमाग होता है, शार्प मीन्स तेज दिमाग होता है. And you know the best example is the dog. So its skill and ability are well known. That's why we have army using dog squad. एबिलिटी और स्किल सभी को पता है, डॉग की क्या एबिलिटी और उसकी क्या स्किल है. इसीलिए इस डॉग को आर्मी में डॉग स्क्वाड का एक जगह मिला हुआ है. डॉग्स आर ऑल्सो ट्रेन फॉर असिस्टेंट एल्डरली. और कभी कभी डॉग को ट्रेन किया जाता है सो दैट दे कैन हेल्प असिस्टिंग मीन्स हेल्पिंग. एल्डरली मीन्स ओल्ड पीपल को वो हेल्प कर सके. इसी तरह से डॉल्फिन एंड चिंपैंजी टू हैव अ शार्प माइंड. उसका भी बहुत शार्प माइंड होता है. एंड कैन बी ट्रेंड फॉर अ वेरियस एक्टिविटीज़. और इन लोग को भी हम लोग तैयार कर सकते हैं बहुत एक्टिविटीज़ करने के लिए. In a life skill, question is, do you like tutu if given a chance to keep tutu as a pet? Why? क्या आप टुटू को पसंद करते हैं? अगर आपको चांस मिला कि टुटू को आप रखो तो रखोगे या फिर नहीं रखोगे? क्वेश्चन इज येस और नो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, बट आई प्रेफर येस. येस, आई लाइक टुटू टू बी माई पेट एज आई ऑलवेज वांट टू लिव विद अ मंकी. मुझे मंकी बहुत पसंद है, इसीलिए मैं एक टुटू को रखना चाहूँगा. लिविंग विद अ मंकी गिव्स एन डिफरेंट एक्सपीरियंस इन द लाइफ. अगर आप मंकी के साथ रहोगे तो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलेगा लाइफ में. इट विल बी गिवन अ चांस टू लिव विद अ टुटू. अगर मुझे चांस मिले कि टुटू के साथ मुझे रहना है तो आई विल ट्राई टू कीप हर मिस्चीवियस लेवल मेंटेन्ड. मैं क्या करूँगा, उसके मिस्चीवियस लेवल को किसी तरह से मेंटेन करूँगा. और आई विल ट्राई टू ट्रेन हर टू बिकम अ वेरी गुड मंकी. और मैं क्या करूँगा, कोशिश करूँगा कि वो किसी तरह से अच्छा मंकी, डिसिप्लिन मंकी बन जाए. वैल्यूज़ में है, द नरेटर डिसाइड टू सेक्रेटली फॉलोड आंट रूबी एंड हर फियांसे रॉकी टू द मार्केट. इज ही जस्टिफाइड इन डूइंग दैट? ये आपको पता है कि नरेटर ने चुपके से आंट रूबी एंड रॉकी को फॉलो करने का प्लान किया था. आपको क्या लगता है कि ये जस्टिफाइड है, ये सही है गलत है? आप बताएंगे. आई थिंक दैट दिस इज नॉट जस्टिफाइड. ये सही नहीं है. हिज एक्ट ऑफ फॉलोइंग आंट रूबी एंड हिज फैंस रॉकी टू द मार्केट इज नॉट जस्टिफाइड. ये तो सही नहीं है. जस्टिफाइड मीन्स आप क्या सोचते हो कि सही है या फिर गलत है? सो इट इज़ नॉट जस्टिफाइड. इट इज़ अ प्राइवेट मोमेंट फॉर देम. ये आंट रूबी एंड रॉकी के लिए प्राइवेट मोमेंट था. परहैप्स दे वांटेड टू इंटरफेरेंस फ्रॉम देयर पेरेंट्स और मिस्chievous बॉय लाइक द नरेटर. इसलिए परहैप्स लग रहा था कि उन लोगों को कोई भी इंटरफेरेंस नहीं चाहिए. आइदर दे वुड बी पेरेंट्स और मिस्chievous बॉय और द नरेटर like the narrator. So the narrator should have let them go on their own to the market. इसीलिए नरेटर को उन दोनों को, आंट रूबी एंड रॉकी को, अकेले दोनों साथ में ही जाने देना चाहिए था. दिस शुड नॉट फॉलो टू द मार्केट. उन लोग को मार्केट में पीछा नहीं करना चाहिए था. राइटिंग स्किल, टुटू took a pearl necklace from a jeweler's shop and created a huge mess in the market. And lastly, he threw it into the canal. The jeweler felt quite tense about the whole episode. Write the jeweler's diary entry describing how he felt as Tutu's mischief. आप अपने आप को इमेजिन कर लो कि आप ज्वेलर हो और आपके ज्वेलरी शॉप में एक बंदर आया और ज्वेलरी शॉप से उस नेकलेस को लेकर के भाग गया. और व्हाट इज़ दैट? दिस मंकी हैड क्रिएटेड अ ह्यूज मेस इन द मार्केट. और पूरे मार्केट में वो हलचल मचा दिया. एंड आफ्टर दैट फाइनली उसने उस नेकलेस को निकाल करके ही थ्रू इट
into the canal. कैनल में फेंक दिया. The jewelry felt very quite tense about the whole episode. बहुत परेशान था वो. And as a jewelers, you have to write down a diary entry. You know, in a diary entry, you have to write down it was the date, then date, day, and the time, and thereafter salutation like the dear diary. Today I had an eventful day. It was not a pleasant day as expected because a monkey named Tutu went to my shop and took over my necklace. ये ये बहुत ही इवेंटफुल डे रहा मेरे लिए. और इट वॉज नॉट अ प्लेजेंट डे. ये बहुत खुशी वाला दिन नहीं था, हैप्पी डे नहीं था. प्लेजेंट मीन्स हैप्पी. एज एक्सपेक्टेड, जो मैंने एक्सपेक्टेड सोचा था वैसा ये दिन नहीं रहा. अ मंकी नेम टूटू वेंट टू माई शॉप. आया मेरे शॉप में और नेकलेस को लेके भाग गया. लेटर द मंकी रेन अवे विद माई नेकलेस विद द हेल्प ऑफ अ स्कूटर. वो नेकलेस से स्कूटर के पास बैठ गया और वो भाग गया. द मंकी देन फ्लेड अवे बाय पुटिंग द नेकलेस इनटू अ डंप. लास्ट में उसने क्या किया, एक नेकलेस को डंप में फेंक दिया, कैनल में फेंक दिया. और पीपल स्टार्टेड जंपिंग इनटू द डंप फॉर द नेकलेस एंड इट वाज ओनली लेटर आई रिसीव्ड माय नेकलेस. बहुत बाद में मुझे नेकलेस मिला और रियली आई एम नॉट वेरी हैप्पी. आई वॉज रियली वेरी टेंस बट नाउ आई फील रिलैक्सड. तो आप भी लिख सकते हो इन द सेम वे. दिस इज अ डायरी एंट्री. And thanks for watching. Like, share, comment and subscribe the channel English Learning with Virendra Sir.